آغاز میں آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ آج 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کرے گی۔ کابینہ کا خصوصی اجلاس دوپہر 2:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں اتحادیوں نے کہا ہے اب اس معاملے کو ہر صورت میں سمیٹنا ہے۔ سینٹ کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی رات گئے طویل ملاقات ہوئی۔ فضل الرحمان نے کہا کہ مسودے میں کوئی بڑا متنازع نقطہ نہیں، آج پی ٹی آئی کا جواب آ جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام مثبت رویے کا اظہار تھا۔ بلاول بھٹو نے کہا یقین ہے مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کو قائل کر لیں گے۔ پی ٹی آئی کو جن نکات پر تحفظات تھے وہ اب شامل نہیں، خواہش ہے بل جے یو آئی پیش کرے۔ اور سینٹ اجلاس میں آئینی ترمیم ایجنڈے میں 26ویں آئینی ترمیم شامل نہیں ہے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے 3 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا ہے۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ زاہد آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، رات کو جو ایجنڈا جاری کیا گیا تھا اور 12 بجے کے بعد جب اگلے دن کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا تو اس ایجنڈے میں صرف ایک ہی نقطہ تھا اور ابھی وہ ایجنڈا تبدیل کر دیا گیا ہے اور آئینی ترمیم جو مجوزہ ابھی آنے والی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس ایجنڈے میں وہ شامل نہیں ہے اور سینٹ سیکریٹریٹ نے 3 نکاتی ایجنڈا جاری کیا ہے اور وقفہ سوالات جو ہے وہ معطل کرنے کی تحریک اس میں شامل ہے۔ ایجنڈے میں صدارتی خطاب پر تشکر یا جو بحث کا معاملہ ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ آئینی ترمیم سپلیمنٹری ایجنڈے کے ذریعے لائی جا سکتی ہے اور یہ جو سینٹ کا اجلاس ہے آج 3 بجے ہوگا۔ ٹھیک ہے جی ظاہر، آپ کا شکریہ۔ دستور میں متنازع اور غیر شفاف ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر دیا۔ پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے ارکان کے گھروں کے باہر پرامن دھرنا دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو متفق نہیں کیا جا سکتا۔ متفق ہونا، مذاکرات کرنا پی ٹی آئی کی سیاست ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وہی کرنا ہے جو پچھلے 10 سال سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا۔ ایک ذاتی رائے ہے کہ ان کو متفق نہیں کیا جا سکتا۔ متفق ہونا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، مذاکرات کرنا، جمہوریت میں جو ڈائلاگ کی اہمیت ہے اس کو جو ہے وہ جانچنا، یہ ان کی سیاست ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولانا کی یہ بہت ہی ایک اچھی جمہوری اور محب وطن سوچ جو ہے وہ غالب آئے اور وہ کامیاب ہوں۔ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں ہوگی۔ انہوں نے وہاں پہ کچھ اور باتیں کی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ صرف بہانہ کیا ہے۔ مولانا کو آگے کہا کہ جی ہم نے مزید جو ہے وہ مشاورت کرنی، وہ صرف ان کا ڈیلنگ ٹیکٹک ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چکر دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہمارے سینیٹر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے زرقا تیمور، فیصل سلیم پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں گے۔ کچھ 2 سینیٹرز کی طرف گئے ہیں، چاہے وہ پیسے سے گئے چاہے وہ پریشر سے گئے، جس بھی طریقہ ہتھ کنڈا استعمال ہوا ہے ہم اس سب کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ جمہوریت کی روح کے خلاف۔ زین قریشی صاحب محفوظ ہیں؟ زین قریشی صاحب محفوظ ہیں؟ اللہ کرے محفوظ۔ وہ سینیٹرز کون ہیں جو ان کی طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ایک زرقا ہے، دوسرا فیصل سلیم صاحب۔ جی تو 26ویں آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان آج پھر سے مذاکرات ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان کے گھر آج پھر سے جائے گا۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے، جبکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بھی شام کو طلب کیے گئے ہیں۔ آج کی ملاقات کب ہونے جا رہی ہے، پی ٹی آئی وفد کب مولانا کے گھر پہنچے گا، عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے۔ بتائیے عبدالقادر۔ جی اس وقت مولانا کی رہائش گاہ کے باہر ہی موجود ہوں۔ گزشتہ رات 2 بجے آخری ملاقات ختم ہوئی تھی اور آج کے دن کی پہلی ملاقات بھی دن 2 بجے ایکسپیکٹڈ ہے۔ پی ٹی آئی کے وفد کو ٹائم دیا گیا تھا مولانا کی جانب سے کہ وہ سوچ بچار کے بعد انہیں جواب دیں، تو آج ان کے جواب کا انتظار کیا جائے گا اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد آج 2 بجے کے قریب مولانا کی رہائش گاہ پہنچے گا۔ آج آئینی ترامیم سے متعلق معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کا اتفاق نہیں ہے، اس حوالے سے گزشتہ رات انہوں نے اپنے ایک سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری کر دیا تھا، جس کے مطابق انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس سارے پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے اور ایوان کی کارروائی کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ دوسری جانب بلاول نے یہیں پہ کھڑے ہو کے گزشتہ رات مولانا کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور انہیں قائل کر لیا، اور ہو سکتا ہے کہ آج مولانا کسی بھی وقت اپن کو سینٹ میں ووٹ دینے کے لیے اجازت دے دیں۔
आज आपको मालूम है कि वफाकी काबीना का जो इजलास है वो दिन 2:30 बजे शुरू होने वाला है, क्योंकि वफाकी काबीना से जब तक मुसवदा मंजूर नहीं होगा तब तक वो सेनेट और कौमी असम्बली में पेश नहीं किया जाता। तो टाइमलाइन कुछ इस तरह से है कि 2:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है, 3 बजे सेनेट का इजलास होगा और शाम 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। तो तमाम अराकीन जो हैं वो आज पार्लियामेंट की जानिब जाएंगे। PTI अपने अराकीन से राब्तों की कोशिश कर रही है। बताया गया है कि 9 से 11 के करीब अराकीन ऐसे हैं जिनके साथ उनका राब्ता मुनक़ता है इस वक्त, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद आइनी तरामीम के लिए अपने नंबर्स पूरे होने का दावा कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इंतज़ार मौलाना की हाँ का था। गुज़िश्ता रात मौलाना ने किसी हद तक ये हामी ज़रूर भरी है कि आज अगर PTI की जानिब से मुस्बत जवाब आता है तो हो सकता है वो इस तरमीम के लिए वोटिंग करें। आपका शुक्रिया अब्दुल कादर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि चाहते हैं कि आईनी तरमीम के लिए जिस मुसवदे पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं वो पार्लियामेंट से मंजूर हो जाए। अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो हम अपने असल ड्राफ्ट पर वोटिंग करा लेंगे। तरमीम के मुसवदे पर हमें PTI से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए, हम चाहते हैं कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो है ना वो से जो है पार्लियामेंट से हो जाए, जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर में सारी पार्टियाँ मुत्तफिक हैं। अच्छी बात है अगर कंसेंसस हो जाए, कंसेंसस ना हो जो हमारा ओरिजिनल ड्राफ्ट है फिर उसके ऊपर वोटिंग करवा लेंगे। हमें इस किस्म की डिक्लेरेशन देने की क्या जरूरत है, साड़ी कड़ी वेलने की वहाँ आई है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं जो कहा था वो हो रहा है। आज शाम उनकी सालगिरह से पहले ही 26वें आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। असेंबली का कंसेंसस जो है ठीक है, नहीं होता तभी बिस्मिल्लाह हमने तो कहा विदाउट आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। आपकी सालगिरह से पहले हो जाएगी सर तरमीम? आपको बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगी सर? मैंने आपको कहा इंशाल्लाह आज ही का दिन होगा, 3 बजे होगा या 6 बजे नेशनल असेंबली का है, 1 घंटा आगे पीछे कर ले। तो जो कहा था वो अल्लाह के मंजूर है। अब उसमें बिस्मिल्लाह हमने कहा था किसी के साथ या किसी के बगैर। आज आपने ट्वीट किया अपने दावा कि आज ही होगा सर, तो आज ही होगा। और कौमी असम्बली के आज के इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र इजलास में मेस गैलरी कार्ड वाले मीडिया नुमाइंदगान को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाज़त होगी। 1 डे प्रेस गैलरी कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर कैमरा मैनों की एंट्री मुरतब करदा लिस्ट के जरिए होगी। तर्जुमान का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस सहाफ़ी प्रेस गैलरी कार्ड साथ रखें। आला अदलिया की दोबारा वजाहत के बाद मजीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरन जारी करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन आएँ बाएँ शाएँ से मजीद काम ना ले। शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी पर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर 8 जजेस के हुक्म को ताख़ीरी हरबों से नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के अहकामात पर आइन और कानून को रोंद रहे हैं। शरीफ खानदान आला अदलिया पर बार बार हमलावर हो रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों की दूसरी वजाहत का मामला। चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार और दीगर से वजाहत तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा ने पूछा है ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार वेब मास्टर से भी वजाहत तलब की है। ज़राए का कहना है कि डेप्यूटी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वेब मास्टर आसिम जावेद से भी वजाहत तलब की गई है कि वेबसाइट पर वजाहत कैसे जारी हुई। तो मौसम से मुताल्लिक़ खबर ये कि सिंध के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर बरकरार है। कराची में आज दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक रहेगा, लेकिन शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जा सकती है। महकमे मौसमियात का कहना है समंदरी हवाएं दिन में बंद रहेंगी और कराची में आइंदा 4 से 5 दिन मौसम गर्म रहने का इम्कान है। लाहौर में बदलते मौसम के साथ स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब में स्मोक से बचाव के लिए बवक्त ज़रूरत मसनूई बारिश की जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आला की हिदायत पर महकमा मौसमियात की मुआवनत से मसनूई बारिश की जाएगी। इसके लिए वसाइल मुहैया कर दिए गए हैं। बैनुल अक़वामी मयार पर अमल किया जाएगा। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए का खर्च आएगा। माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की ज़रूरत नहीं होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, कारखानों और दीगर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अवाम साथ दें और स्मोक से बचाव के जिहाद को कामयाब बनाएं।
सक्खर बैराज के दरवाजों की अपग्रेडेशन और बहाली का काम आज से आगाज हो रहा है। सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान चोरो इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। चीन की कंपनी 3.5 साल के दौरान तमाम दरवाजों की तब्दीली का काम मुकम्मल करेगी। मजीद बताएंगे सलीम सेहटो। जी बिल्कुल, मुल्की ज़राअत में रीढ़ की हड्डी तस्वर किए जाने वाले सक्खर बैराज के दरवाज़ों की अपग्रेडेशन और बहाली के काम का आज सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान चोरो इफ्तिताह करेंगे। चाइना की कंपनी की जानिब से 3.5 साल के दौरान सक्खर बैराज के तमाम 56 दरवाजे तब्दील किए जाएंगे। वैसे सक्खर बैराज 66 दरवाजों पर मुश्तमिल है, लेकिन सक्खर बैराज के 10 दरवाजे पहले ही बंद कर दिए गए, जबकि बाकी 56 दरवाजों से जो वो पानी का खराज होता है। तो बैराज इंसान का कहना है कि जो पहले दरवाजे थे उन पर जो उनका जो वजन था वो 120 टन के करीब था, जिसमें 60 टन का काउंटर वेट हुआ करता था। जो अब जो दरवाजे बनाए जा रहे हैं वो ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे, उनमें काउंटर वेट खत्म होगा, जिससे बैराज की उम्र में भी इजाफा होगा और दरवाजे जो हैं वो ज्यादा वक्त चल सकेंगे। तो जाम खान चोरो कुछ देर के बाद दरवाजों की तब्दीली का इफ्तिताह करेंगे। जी, साइड सुपर हाईवे में गाड़ी पर फायरिंग से जख्मी शहरी सादिक दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल सुबह फैमिली के हमरा जा रहा था। 2 मुल्जिमान ने गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग की। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अफसल खान से। बताएगा अफसल। देखिए, साइड सुपर हाईवे में जमाली पुल के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें सादिक नागरी नामी सुपारको मुलाजिम शदीद जख्मी हुआ था और अस्पताल में दौरान इलाज चल बचा। बुरसा इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। उनका कहना है कि वाकया डकैती मुजाहिमत का शाखसाना है। मुल्जिमान ने असले के जोर पर इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जब नहीं रुके तो उन्होंने फायरिंग कर दी। हालांकि गाड़ी के अंदर खवातीन भी मौजूद थी, पूरी फैमिली के साथ ये थे और फायरिंग के नतीजे में नागरी शदीद जख्मी हो गया था। पुलिस भी जाए वक़्वा पर पहुंची है, लेकिन पुलिस का बयान मुख्तलिफ है। पुलिस का कहना है कि कोई चीज़ चूंकि छीनी नहीं गई, इसलिए इस वाक़े को डकैती मुजाहिमत का शाखसाना करार नहीं दिया जा सकता। वो अपनी तहकीकात का दायरा वसी किए हुए हैं। इस वक्त लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की गई है और बुरसा की बड़ी तादाद भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया अफजल खान। कराची के इलाके लियारी मूसा लेन में 4 खवातीन के कत्ल का मुकदमा घर के सरबराह मोहम्मद फारूक की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, ताहम वारदात में बिलाल के मुलव्वस होने के कभी इम्कानात हैं। घर के सरबराह ने भी बिलाल पर शक जाहिर किया है। मुद्दई ने कहा वो जानवरों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। घर में वो, उसकी बेगम, तलाक याफ्ता बेटी, बेटा, उसकी अहलिया और बेटी और नवासी रिहाइश पजीर थे। 18 अक्टूबर की रात 3:15 बजे घर पहुंचा तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। चाबी से दरवाज़ा खोला तो बीवी, बेटी, बहू और 12 साल नवासी खून में लथपथ थे। अब कुछ बात गजा की सूरत हाल की, तो गजा में इस्राएली फोर्सेस ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। बैतुल्लाहिया में इस्राएली बमबारी में 73 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास रहनुमा खलील अल हया का कहना है कि इसराइल मंसूबे के तहत बैतुल्लाहिया से लोगों की बेदखली के लिए नस्ल कुशी कर रहा है, जो नाजीज़म का एक नया बाब है। खान यूनिस जाने वाले 4 इंजीनियरों को गाड़ी पर मिसाइल मारकर शहीद कर दिया। सहूनी फोर्सेस ने 16 दिन से शिमाली गजा के 3 इलाकों का मुहासरा कर रखा है। अशिया खुरनोश की किल्लत है। इंटरनेट और मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम है। गजा में हमास की मज़ाहमत भी जारी है। ताज़ा हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली तैयारों ने सुबह सवेरे लबनान के दारुल हुकूमत पर बमबारी कर दी। बैरूत धमाकों से गूंज उठा। इसराइली तैयारों ने बैरूत के जुनूबी इलाके दहिया पर बमबारी की। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल से कहा है कि वो बैरूत में हमलों से गुरेज करे। सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़प में एक इसराइली फौजी मारा गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शिमाली इलाके पर 180 से ज़ायद रॉकेट दागे। इसराइली मीडिया ने इन हमलों में एक फौजी की हलाकत और 10 के जख्मी होने की तस्दीक की है। गजा और लबनान में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज जारी है। सेनेगल में हज़ारों अफराद ने इसराइली मुखालिफ रैली निकाली। मुजाहिरीन गजा में नस्ल कुशी फौरी बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइल दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी मुजाहरे हुए। यहूदियों ने भी गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना था नेतन्याहू हुकूमत यरगमालियों की वापसी के लिए कुछ नहीं कर रही। कोई भी फतह यरगमालियों की वापसी तक मुमकिन नहीं होगी। ईरान पर इसराइली हमले की खुफिया मालूमात टेलीग्राम पर लीक हो गई। खुफिया मालूमात मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी टेलीग्राम अकाउंट पर लीक हुई, जिसके बाद अमेरिका ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। CNN का कहना है कि दस्तावेजात पेंटागन की मिल्कियत है, जो कौमी सलामती के मंसूबे से मंसूब है।
इन दस्तावेजात में ईरान पर हमले की तैयारियों की तफसीलात के अलावा हथियारों की नकलो हमल की मालूमात भी शामिल हैं। तफ्तीशी हुकाम जो है वो इस वक्त तफ्तीश कर रहे हैं। इन दस्तावेजात तक किसी की रसाई थी। खुफिया दस्तावेजात अमेरिका के अलावा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनाडा देख सकते हैं। और खबर आपको दें कि आलमी अखबारात और जराइद ने बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बाहर होने को धचका करार दे दिया है। आलमी मीडिया की जानिब से ये लिखा गया कि चांसलर की दौड़ से बाहर होना बानी पीटीआई की साख के लिए नुकसानदेह है। यूनिवर्सिटी चांसलर का इलेक्शन लड़ने से नाअहली ने बानी पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल दागदार कर दिया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब, आलमी अखबारात और जराइद ने बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बाहर होने को धचका करार दिया है। सर, क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, ये एक पूरी लॉबिंग की गई और इस लॉबिंग में ये साबित करने की कोशिश की गई कि बानी पीटीआई जो है वो मासूम है, उन पर चलने वाले मुकदमात सारे जाली हैं और वो झूठ हैं और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, मगर आखिर में पीटीआई और बानी पीटीआई खुद झूठे साबित हुए। वो तमाम मुकदमात और होने वाली सजाओं को बैनुल अक़वामी तौर पे तस्लीम कर लिया गया। ना सिर्फ ये कि करप्शन पर होने वाली सजा, बल्कि कौमी राज फाश करना और सरकारी तहाइफ बेचना ये नाअहली का बाइस बना। पीटीआई हमेशा से कौमी मुफाद या पाकिस्तान की साख्त और इज्जत वकार देखने की बजाय अपनी सियासत और बानी पीटीआई की जात के गिर्द घूमती है। और यहाँ पर भी कोशिश की गई, इस लॉबिंग के दौरान पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान के निज़ाम पर हमला किया गया। पूरे निज़ाम और अदारों को एक झूठा साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में वो खुद गुनाहगार और नाअहल साबित हुए। पाकिस्तान में जिसको ये सादिक व अमीन का लक़ब साकब निसार देकर गए, आज वो बैनुल अक़वामी नाअहल साबित हुआ है और ये बदनामी का बाइस पाकिस्तान के लिए भी बना है, पाकिस्तानियों के लिए भी बना है कि कैसे आदमी को वो प्रमोट करते रहे चांसलर के ओहदे के लिए। वहाँ तो कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़े तो लोग उसे बुरी नज़र से देखते हैं, और कहाँ किसी आदमी पर इखलाकी इल्ज़ामात की ढेर सारे इखलाकी इल्ज़ामात हों, करप्शन के इल्ज़ाम साबित शुदा हों और उसके बाद कौमी राज और सरकारी तहाइफ बेचने को तो बहुत ही बुरा समझा जाता है मगरब में और जमहूरियतों में। तो ये सारा कुछ पर मोहर लग गई है कि जो इल्ज़ामात पाकिस्तान में थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं, उसको बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी सच्चा माना है। बहुत शुक्रिया तलाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम 26वीं तरमीम को 73 के मुतफ़िक़ा आइन की तरह मंजूर कराना चाहते हैं। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं इत्तेफ़ाक़ राय में बरकत है, आइनी तरमीम आज या कल मंजूर हो जानी है। तमाम जमातों की क़यादत को पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए मुत्तहिद होना होगा। अगर ये मौका गवा दिया तो नादान दोस्त एक दिन सर पकड़ कर रोएंगे। जेल से निकलने के प्लान में नाकामी के जिम्मेदार नहीं चाहते कि बानी पीटीआई बाहर आए। बानी पीटीआई पूरे मुल्क को अपने गुस्से और इंतशार का शिकार रखना चाहते हैं। आईनी तरमीम से आइन को मुतनाज़े और अदालत से खिलवाड़ किया जा रहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय नहीं मुकमका हो रहा है। वक्त का तकाजा है कि आइन को मुतनाज़े होने से बचाया जाए। पूरा मुल्क आईनी तरमीम की गिरफ्त में है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।